सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. 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 Hope everyone is doing good. सब ठीक है, ये विश्वास करता हूँ। Let us start the meeting today. हम आज का मीटिंग शुरू करें। विजय सिस्टर, दयानंद ब्रदर है तो प्रार्थना करके शुरू कर सकते हैं मीटिंग। बाहर गए। नहीं, वो बाहर गए अभी जस्ट। ओके ओके, कोई बात नहीं। देसाई सिस्टर Desai, Yeah, I'll speak. please pray and start the meeting. We'll start. Yeah, I'll pray. Okay. 1 minute. Yeah. Oh, Jesus, thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Father God, we thank you and praise you. Thank you and praise you for this time you are given. Father God, we pray, Father God, we all have gathered in your holy and anointed name, Father God. Wonderful Lord, we worship you and praise you. We give glory to your holy and mighty name, Father God. Thank you, Master God. So we surrender into your holy hands, Father God. Right now we give Jose into your holy hand, Father God. You speak through him, Father God. Speak through him words, Father God. Bless him in a mighty way, Father God. Father God, whoever is sick amongst the midst, Father God, we call upon your name for total healing and deliverance over them in the holy and anointed name, Father God. Father God, we thank you and praise you. Father God, as we worship you, Master God, let it be pleasing to your ears, Master God. You're going to bless our worship also in your holy name, Father God. Father God, we thank you and praise you. We thank you for this time once again you are given. We cover and seal all the prayers by the holy blood. We worship you and praise you. We give all glory, honor, and praise. In most precious, wonderful Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Thank you. Praise God. आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरी कदमों के निशान।
चुका मुझ पर तेरा बस ना चल सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना बीमारी देख तेरा सर झुका मुझ पर तेरा बस ना चल सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना उठते हुए बादलों में तू मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान उठते हुए तूफानों में तू मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान Glory will come upon the church. Thank you, Lord Jesus, for this beautiful day of given us, Lord Father. We thank you, Lord Father, for getting us all over here again as one family to glorify your holy name, O Lord Father. We thank you, Lord Father, for getting each and every one of us, O Lord, for keeping us safe, O Lord Father,
and for your hand of protection, O Lord Father. We thank you, Lord Father, for everything you are doing in our lives. We thank you for your blessings that's always around us, for bounding us, O Lord Father, with your great love. At this time, O Lord Father, we commit Joe's uncle into your hands, Father. You speak through him to us, O Lord Father. Bless him, O Lord Father. Hide him behind your cross. And you fill his mouth with the words that you need to speak to us, O Lord Father. We thank you, O Lord Father, for this blessed time once again, O Lord Father. We commit this whole time into your hands, O Lord Father. Bless us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. सबको और एक बार जय मसीह की and praise the Lord. Thank you, Bethany, for leading us in worship, and we'll continue our study in the book of Exodus. मैं विश्वास करता हूं कि हर हफ्ते हम जब निर्गमन का पुस्तक से हम अभ्यास कर रहे हैं और यशायाह के पुस्तक से अभ्यास कर रहे हैं, कोई भी बोर नहीं हो रहा है, ये मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि वही पुस्तक से हम काफी महीनों से अभ्यास कर रहे हैं. Okay, so the same book we are studying from many months. I hope none of you all are bored, but it is good if we don't rush with the topics, and we meditate and think about every verse, every chapter that we are learning, not just keeping the TWR quiz in mind, but how we need to apply in our daily life. हम केवल TWR का क्विज के लिए तैयारी करने के लिए नहीं, परंतु हमारे रोज के जीवन में हम कैसे इन वचनों को कार्य में ला सके, उसके लिए हम वचन का अध्ययन करके समझने के लिए वो हमारा मकसद होना चाहिए. आमीन. तो उस कारण हम में से कोई भी वही पुस्तक हम बार बार पढ़ रहे हैं ये सोचकर हम बोर नहीं होना चाहिए. ओके. तो निर्गमन का पुस्तक निर्गमन का पुस्तक उसका 19 अध्याय हम खोलेंगे आज के अभ्यास के लिए. We'll look into the book of Exodus chapter 19. और वचन में आगे बढ़ने के पहले हमारे बीच में एक नया व्यक्ति है जो आज पहली बार शायद बाइबल स्टडी अटेंड कर रहे हैं. रिया सिस्टर, रिया मक्खीजा ना, लता सिस्टर? रिया माखीजा. रिया मक्खीजा सिस्टर हमारे बीच में है. हम आपको यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ. हम विश्वास करते हैं कि ये संगति, ये वचन जो आप सीखेंगे, आराधना जो हुआ, ये सब आपका आशीष का कारण होगा, ये हम विश्वास करते हैं. और हमारे बीच में अनीता सिस्टर भी है, who is attending from quite a long time, but I just want to once again welcome you, sister, Anita sister. Thank you. We hope both of you will be blessed by this fellowship, through this fellowship,
we look forward to be blessed by you as well. Okay, let us continue. We are studying the book of Exodus. Just for your reference, आप लोगों के जानकारी के लिए हम निर्गमन का पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो इस पुस्तक में हम 19वां अध्याय में पहुंचे। क्यों ना हम हमारे इस अभ्यास को जारी रखें। Exodus chapter 19. Yes, brother. Verse 1 and 2. इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने जंगल में आए, और जब वे रपीदेम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तो 19वां अध्याय में जब हम पढ़ रहे तब इजरायली लोग कहां पर पहुंचे और कितना समय हुआ मिस्र देश से निकलकर, इसका जानकारी यहाँ पर मिलता है। ओके, ये जानकारी हमारे स्टडी के लिए, अभ्यास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कितना समय हुआ मिस्र देश से निकलकर? तीसरा महीना, 3 महीने, 3 महीना हुआ, 3 महीना और 14 दिन। ओके, पढ़िए दूसरा वाक्य और एक बार। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तो सिनाई जंगल में पहुंचे, सिनाई जंगल में। ओके, और उस पर्वत के सामने उन लोगों ने डेरा खड़ा किया, वहां पर उन लोग रुके। कौन से पर्वत? सिनाई जंगल में पहुंचे, तो वो पर्वत जो है सिनाई पर्वत का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो सिनाई इस पर्वत के सामने आकर इजरायली लोग यहाँ पर रुके। और फिर क्या हुआ, पढ़िए। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। और जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है, वे यही है। आमीन। आमीन। इन वचनों के शब्दों पर जरा गौर कीजिए। परमेश्वर, देखो, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन में जो लिखा है उसको अपने मनों में कल्पना कीजिए। जस्ट इमेजिन व्हाट यू आर रीडिंग इन योर माइंड। लेट इट बी अ विजुअल टेक्स्ट, विजुअल टेक्स्ट इन योर माइंड। आपके मन में इन शब्दों को, वचन को एक एक घटना जैसे आप देखो। सिर्फ शब्द मत पढ़ो, परंतु पढ़ते वक्त अपने मन में एक चित्र बनाओ। ओके, जैसा आप एक मूवी देख रहे हो, सचमुच का लोग वहां पर रुके हैं, आप अपने मन के आंखों से देखो। ओके, तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि इजरायली लोग सिनाई जंगल पर पहुंचकर उस पर्वत के सामने रुके, और मूसा उस पर्वत पर जैसे चढ़ा, परमेश्वर यहोवा मूसा से बात किया। ओके, अब परमेश्वर यहोवा ने क्या बात किया? परमेश्वर के इस शब्दों पर हमें गौर करना है। क्या बात किया? तीसरा वचन में, याकूब के घराने से, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएल को मेरा यह वचन सुना। और इजराइल को मेरा ये वचन सुना। क्या वचन है? चौथा वचन पढ़िए। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको
मानो उक्काब की पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। बस बस, तुमने देखा है मैंने क्या किया। इस परमेश्वर के इस शब्द पर जरा मनन कीजिए। लेट अस ऑल मेडिटेट ऑन दिस वर्ड। यू हैव सीन व्हाट आई डिड टू द इजिप्शियंस। तुमने देखा है मैंने मिस्र देश के साथ क्या किया। ओके, आज हमारे लिए ये सवाल हमारे पास भी है, हमारे सामने भी है। परमेश्वर हम सबसे ये वाक्य कह रहा है, तुमने देखा है मैंने शैतान के साथ क्या किया। क्या हमने देखा है? जरूर देखा है, इसीलिए तो हमने यीशु पर विश्वास किया। हमने क्या देखा? उस क्रूस के ऊपर क्या हुआ? हमने क्या देखा? क्या यीशु मसीह का क्या बोलते इज इट, हैव वी सीन जीसस क्राइस्ट being ripped out? Have we seen Jesus destroyed on the cross? क्या हमने यीशु मसीह का अंत देखा है क्रूस पर, या हमने शैतान का अंत देखा है? ओके, संसार के नजर से यदि हम देखेंगे तो यीशु का अंत हो रहा है वहां पर। लेकिन जैसे मैंने कुछ हफ्ते पहले आप लोगों को एक वीडियो बताया था, सॉरी एक पावर पॉइंट का स्लाइड बताया था। ओके, संसार के नजर में जीत क्या है? जब खेल कूद में, अभी आईपीएल क्रिकेट चालू है, तो खेल कूद में जब एक टीम जीत हासिल करके कप लेकर लौट कर आता है अपने देश में, उनके लिए जीत वो है। ओके, जीत का मतलब संसार के नजर में जीत क्या है? ओके, सामने वाले को हरा देना और दिखना चाहिए कि कप हमारे हाथ में है। ओके, लेकिन वो जीत 1 साल के लिए या 4 साल के लिए होता है, उसके बाद फिर वो कप हासिल करना पड़ता है। ओके, लेकिन क्रूस के ऊपर क्या हुआ? यीशु मसीह ने जो जीत हासिल किया वो हमारे लिए हमेशा के लिए था, हमेशा के लिए है। ओके, हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद फिर अगला साल और एक बार हमें उस जीत हासिल करने के लिए, शैतान के ऊपर जीत हासिल करने के लिए फिर लड़ाई नहीं लड़ना है। हमारा लड़ाई एक बार और हमेशा के लिए यीशु ने लड़ा है। ओके, हमें केवल विश्वास करना है और हमारा विश्वास एक बार और हमेशा के लिए है। ओके, और एक बात, उस क्रूस के ऊपर संसार के नजर से देखेंगे तो यीशु मसीह हार गया, मर गया। इसीलिए लोग नीचे से पुकार कर कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर। तो संसार के नजर से उन लोग यीशु को जब ये शब्द बोलते हैं तो उन लोग क्या बोल रहे हैं? तू यदि परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर है तो तू दिखा कि तू परमेश्वर है। जब तू कुछ नहीं कर पा रहा है और वहां पर एक निर्बल जैसा मर रहा है, उसका मतलब तू परमेश्वर नहीं है, ऐसा लोगों के नजर से देखा जा रहा है। लेकिन निशब्द होकर, अपना मुंह नहीं खोलना, एक भेड़ को, एक बकरी को, एक मेमने को जैसा काटने के लिए लेकर जाता है, उस प्रकार यीशु मसीह को लेकर गया उस गोलगोता पर्वत के ऊपर, और वो निशब्द था, अपना मुंह नहीं खोला। ये संसार के लिए एक हार था, लेकिन नाश होने वालों के लिए, हमारे लिए, ओके, ये क्रूस की कथा एक विजय देने वाली कथा है। ओके, संसार के लिए ये मूर्खता है, परंतु हमारे लिए क्या है? ये उद्धार है हमारे लिए। ओके,
और परमेश्वर आज हमसे कहता है, क्या कहता है? तुमने देखा है कि मैंने कैसे मिस्र देश को मार दिया। ओके, तो हमारे लिए क्या है? परमेश्वर हमसे कहता है, याद करो, तुमने देखा है उस क्रूस पर मैंने कैसा तुम्हारे दुश्मन, हमारा दुश्मन मिस्र देश नहीं था, लेकिन हमारा दुश्मन शैतान था। ओके, और है अभी भी। इस शैतान को मैंने कैसे हरा दिया क्रूस पर, ये तुमने देखा है। ओके, हम सब उस चीज को जो परमेश्वर ने किया क्रूस पर, वो याद करना बहुत जरूरी है। अक्सर हम इस संसार के भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है। ओके, इसीलिए परमेश्वर याद दिलाता है हमें, और याद दिलाकर फिर इजरायलियों को परमेश्वर क्या कहता है? 5वां वाक्य, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। हाँ, तो पहला परमेश्वर कहता है कि याद करो। क्या याद करना है? कि हमारा उद्धार कैसा हुआ है। ओके, हमारा उद्धार को भूलना नहीं है। हमने किस पर विश्वास किया है, भूलना नहीं है। वो याद करने के बाद अगला चीज हमें क्या याद दिलाना है अपने आप को? ओके, 5वां वाक्य, इसीलिए यदि तुम मेरे, हाँ पढ़िए, अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे वीडियो डालो क्या? और मेरी वाचा का पालन करोगे। ये बंद करो उधर लाइट। सभी अपना मेरे को बचाता है लड़का, बाप रे लॉर्ड। डोरथी सिस्टर, आपका मेरे जैसा हम इसको ना आदमी इंसान को सब पता नहीं को कुछ। यस ब्रदर, कंटिन्यू। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे। ओके, एक मिनट, पॉज। इसलिए यदि तुम मेरा निश्चय मानोगे, तो इसलिए जहां पर वचन में इसलिए लिखा है, वहां पर हमें क्या पूछना है? किस लिए? जो हमने पहले पढ़ा, किस लिए? क्योंकि परमेश्वर ने हमें शैतान के हाथों से छुड़ाया है, वो याद करो, परमेश्वर कहता है। इसलिए हमें क्या करना है? तो एक तरफ परमेश्वर ने कुछ किया है हमारे लिए। ओके, जैसा इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने मिस्र देश से उनको छुड़ाया है, तो ये परमेश्वर का भाग है। अब हमारा भाग क्या है? इसलिए तुम क्या करोगे? मेरी वाचा का पालन करोगे। मेरी वाचा का पालन यदि तुम करोगे, पढ़िए, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। हाँ, सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। You shall be a special treasure to me above all the people. Do we understand, the privilege of this verse when we read how privileged we are? कैसे हम, what do you call for privilege, brother? सौभाग्य। हाँ, कैसा हम भाग्यशाली है, कैसा हमारा सौभाग्य है कि हम इस संसार के बाकी सब लोगों में से एक स्पेशल लोग है। हम स्पेशल लोग हैं। ओके, लेकिन ये स्पेशल जो दर्जा है, दर्जा बोलते हैं ना ब्रदर? हाँ, ये स्पेशल जो दर्जा है, ये हमें ऐसे ही मुफ्त में नहीं मिलता। इसके पीछे हमें एक बलिदान देना बहुत जरूरी है। एक तरफ परमेश्वर ने अपने आप का बलिदान दिया क्रूस पर, इसलिए 5वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, हमारा कर्तव्य क्या है? वो है हमारा बलिदान। वो क्या है? यदि तुम क्या करोगे? मेरी वाचा का पालन करोगे। ये बहुत बड़ा बलिदान वाला कार्य है। परमेश्वर का वाचा, परमेश्वर का वचन का पालन करना, दिस इज वेरी 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 टफ, वेरी टफ। हम जो बुलाए गए हैं, हम जो चुने गए हैं परमेश्वर के लिए,
हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। क्या है वो? आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करना। ओके, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को पालन करो। यीशु मसीह ने भी कहा नए नियम में, इफ यू ओबे माई कमांडमेंट्स, ओके, you are my disciples. If you want to follow me, obey my commandments. These are the, teachings which Jesus gives. So obeying God's commandments is very tough. परमेश्वर का आज्ञा पालन करना बहुत मुश्किल है, परंतु परमेश्वर हमें एक सहायक दिया है इस मुश्किल काम को संभव करने के लिए। To make this possible, हमारे खुद के शक्ति से ये असंभव है, परंतु परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है। वो सहायक पवित्र आत्मा है जो हमें मदद करता है उनके वचन के अनुसार चलने के लिए। वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, परंतु वचन के अनुसार चलना भी। ये परमेश्वर का योजना है वचन के प्रति। वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं दिया है कि तुम सुनकर, हाँ आज का वचन बहुत अच्छा था, बहुत पावरफुल था, ऐसा फीडबैक देने के लिए नहीं। ओके, परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हो केवल अच्छा था, सामर्थ्य था, ऐसा बोलने के लिए नहीं, परंतु वचन सुनने के बाद हर वचन जब आप सुनते हो ऐसा सुनो कि वचन आपके हृदय को छेद दे, आपको रुलाए, आपको बहुत ही क्या बोलते हैं, अनकंफर्टेबल बनाए। ओके, जब आप वचन सुनते हो आप बहुत ही क्या बोलते हैं, आपको बोलिए ब्रदर। अस्वस्थ लगना चाहिए। आप जो टेका लेके बैठे हो, ओके, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आप यदि कुर्सी पर बैठे हो, टेका लेके बैठे हो, आपके पीठ पर आराम मिल रहा है और आप आराम से वचन सुन रहे हो, लेकिन जैसा वचन सुनेंगे, ओके, आराम पूरा चला जाना चाहिए। आपके अंदर कुछ एक दीप जलना चाहिए, आपको अस्वस्थ लगना चाहिए। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रही हूं। वचन आपको एहसास दिलाना चाहिए, आपके आंखों को खोल देना चाहिए। ओके, और यदि हमारे आंखें नहीं खुलती तो वचन का गलती नहीं है। ओके, वचन असामर्थ्य है ऐसा नहीं है। ओके, हर वचन जो हम सुनते हैं वो एक बीज के समान है। ओके, बीज में गलती नहीं है, लेकिन जमीन में गलती होता है। हम जमीन तैयार नहीं करते। यदि हमारा जमीन पथरीला जमीन है तो वचन फल नहीं ला सकता है। यदि हमारा जमीन में, इस हृदय में यदि कांटे हैं तो वचन जो है कुचल दिया जाता है। यदि हमारा जो जमीन, जो हृदय है वो पथरीला जमीन है या एक रास्ते के समान है, तो उस जमीन पर जब बीज गिरता है, वचन गिरता है, तो चिड़िया आकर उस वचन को लेकर चला जाता है, शैतान छीन कर चला जाता है। ओके, और यदि हमारा जमीन जो हृदय अच्छा जमीन है लेकिन आधा अच्छा है, थोड़ा गहराई में पत्थर है, ओके, तो क्या होता है, फल वो बीज जो है उगता है, पौधा होता है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए होता है, बाद में सूख जाता है, क्योंकि उस जमीन के थोड़ा नीचे गहराई में पत्थर है। लेकिन जमीन जो अच्छा जमीन है, यीशु मसीह ने क्या सिखाया, वो फल लाता है, थोड़े समय के लिए नहीं, 100 गुना, 60 गुना, 40 गुना फल लाता है। ओके, तो उस मनोभावना से जब हम वचन को सुनेंगे, ओके, तो वचन हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन, हफ्ते भर हफ्ते, जैसे हम वचन सुनते हैं, बदलता जाएगा और हम यीशु के जैसा बनेंगे, यीशु के जैसा।
ओके, सिद्धता की ओर हम बढ़ते जाएंगे। तो यहां पर परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों को स्पष्ट रीति से कहता है कि तुम याद करो तुम्हारा उद्धार कैसा हुआ, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हें क्या करना है? वचनों का पालन करना है, परमेश्वर के वचन का पालन करना है। और यदि तुम वचनों का पालन करोगे तो तुम मेरे लिए सारे पृथ्वी के लोगों में तुम कैसा लोग रहेंगे मेरे दृष्टि में? क्या लिखा है वहां पर? याजकों का राज्य और नहीं, पवित्र जाति। उसके पहले 5वां वाक्य का अंत में, तुम मेरा निज धन ठहरोगे। एक निज धन ठहरोगे। यू विल बी अ स्पेशल ट्रेजर फॉर मी। ओके, देखिए परमेश्वर के हृदय को समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम अपने आप को एक उदाहरण समझकर जरा कोशिश कीजिए परमेश्वर को समझने के लिए। जब आपके जीवन में एक बहुत कीमती धन है, उस धन को आप कैसे रखोगे? बहुत संभाल कर रखोगे, क्योंकि आप जानते हो उस धन का कीमत बहुत बड़ा है। आपने बहुत मेहनत करके आपने पैसा कमाया, बहुत पैसा कमा के लाखों का एक धन आपने खरीदा। ओके, या तो गहना, सोने का गहना आपने खरीदा, आपके मेहनत से आपने खरीदा और आप तिजोरी में रखते हो। आप कैसा रखोगे? बहुत संभाल कर रखोगे। ओके, बार बार बीच बीच में आप देखोगे, उसका संभाल रखोगे आप। ओके, तो आपके लिए जो सबसे प्रिय है, हो सकता है वो सोना नहीं, हो सकता है आपके बच्चे, हो सकता है आपके पति, आपके पत्नी। ओके, तो जो भी आपके लिए बहुमूल्य है उसका आप बहुत ध्यान रखकर उसका संभाल रखोगे। परमेश्वर कहता है कि आप और मैं उनके लिए कैसा धन है? निज धन है, अ स्पेशल ट्रेजर। तो परमेश्वर, यदि हम हमारे जीवन में जो धन है उसका हम बहुत संभाल रखते हैं, तो क्या परमेश्वर के लिए हम धन है? ओके, तो क्या परमेश्वर हमारा कैसा संभाल रखेंगे? ये समझने के लिए हम it's easy for us to understand that. ओके, तो परमेश्वर के लिए यदि हम उनके लिए एक धन है, निज धन है, हमारे लिए परमेश्वर क्या है? जरा मनन कीजिए, जरा सोच कर देखिए। ओके, अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए। ओके, खुद को ये उत्तर दीजिए, क्या परमेश्वर हमारे लिए धन है? और यदि धन है तो निज धन है, सबसे बहुमूल्य धन है वो, या हमारे लिए कुछ और परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण एक धन बन गया है? ये हमें अपने आप को जांच कर उसका उत्तर अपने आप को देना है। ओके, इफ वी आर अ स्पेशल ट्रेजर फॉर गॉड, व्हाट इज गॉड फॉर अस? इज गॉड अ स्पेशल ट्रेजर फॉर अस? इफ नॉट, इट्स अ वेरी सैड थिंग इन आवर लाइफ। हमारे लिए बहुत दुख की बात है यदि हमारे जीवन में परमेश्वर एक सबसे बहुमूल्य धन नहीं है, उनके जगह पर हमने यदि हमारे बच्चे, हमारे बैंक अकाउंट, हमारा संसार का धन या जॉब या पढ़ाई लिखाई या ऐसे कुछ चीज परमेश्वर का स्थान ले लिया है, तो समय है कि हम उसको बदल दे, उस प्रायोरिटी को बदल दे। परमेश्वर हमारे लिए सबसे बहुमूल्य धन होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप से उस व्यक्ति का, परमेश्वर का राज्य का एक दृष्टांत दिया था। परमेश्वर का राज्य उस धन के समान है जिस धन को एक व्यक्ति ने जब पाया, उस खेत में छिपा हुआ वो धन। ओके, उस खेत में, उस भूमि में छिपा हुआ उस धन के समान है
परमेश्वर का राज्य, जिस धन को जब एक व्यक्ति ने पाया, उसने अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को ही खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? क्यों अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार रहा? क्योंकि सब कुछ जो है ना उसका, उससे भी सबसे बहुमूल्य है वो धन जो उस खेत में छिपा हुआ है। तो उस खेत को ही मैं खरीद लूं। एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा करता है। परमेश्वर का राज्य उस धन के समान है, यीशु कहता है। ओके, परमेश्वर का राज्य परमेश्वर को दर्शाता है, परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है। तो परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर के स्वभाव को पाने के लिए क्या हम तैयार हैं हमारा बाकी सब कुछ दांव पर लगाने के लिए? ये प्रश्न का उत्तर हमें अपने आप को देना है। ओके, परमेश्वर के लिए हम बहुमूल्य है, एक नीच धन है। परमेश्वर हमारे लिए क्या है? लेट अस इंट्रोस्पेक्ट। आगे पढ़िए। समस्त पृथ्वी तो मेरी है समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। तुम मेरी दृष्टि में याजकों का एक राज्य ठहरोगे और एक पवित्र जाति ठहरोगे। जाति ठहरोगे। ओके, तो परमेश्वर के दृष्टि से जरा देखो, परमेश्वर के दृष्टि से हम कौन है उनके नजर में। ओके, तो परमेश्वर के नजर में परमेश्वर हमें कैसा देखता है? एक नीच धन जैसा। सबसे बहुमूल्य धन उनके लिए हम है। ओके, और दूसरा, एक याजकों का राज्य। परमेश्वर हमें कैसा देखता है? याजकों का राज्य। एक याजक का काम क्या है? क्या आप लोग बोल सकते हो? एक याजक का काम क्या है? सेवकाई में अपना अपना तन मन धन सब कुछ डाल देना सेवकाई में। और हम विश्वासी लोग क्या सोचते हैं? यदि हम ऐसा सोचते हैं तो, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन यदि हम ऐसा सोचते हैं तो विश्वासी लोग क्या सोचते हैं? सेवकाई पास्टर करेगा, क्योंकि वो सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन परमेश्वर कैसा देखता है? केवल पास्टर, अगुवाई या सुसमाचारक, ऐसे लोगों को परमेश्वर देखता है केवल? परमेश्वर पूरे विश्वासियों को साथ में देखता है, क्योंकि ये जो वचन परमेश्वर मूसा को कहता है बोलने के लिए, किसको बोलने के लिए कहता है? इजराइल प्रजा के अगुवाई लोगों को केवल बोलने के लिए बोलता है? नहीं। तीसरा वचन में हमने पढ़ा, याकूब के घराने को बोलो, और किसको? और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। इजराइलियों को, पूरे इजराइलियों को, केवल अगुवाइयों को नहीं। It's a word that is spoken not only for the leaders of Israel, not only for Moses and Aaron, okay, who are the pastors, but it is for the entire Israelites. Okay, तो सारे इजराइल प्रजा को परमेश्वर कैसा देखता है? एक नीच धन। दूसरा, एक याजकों का राज्य। तीसरा, एक पवित्र, क्या है? पवित्र जाति, पवित्र जाति। तो मेरा आप लोगों से सबसे विनती यह है कि अपने आप को ऐसा मत समझो कि मैं कोई जॉब करता हूं, मैं ऑफिस में जाता हूं, या मैं एक बिजनेस करता हूं तो मैं सेवक नहीं हूं। सेवक तो पास्टर है, सेवक तो वो भविष्यवक्ता है, या वो अगुवाई लोग जो हमारे कलीसिया में है, या वो सुसमाचार सुनाने वाले जो सेवक है, उन लोग सेवक लोग हैं। ये शैतान का झूठ है जो मसीह लोगों में, नॉर्मल जो बिलीवर्स लोग हैं ना,
विश्वासियों के बीच में ऐसा एक मनोभावना डालने वाला शैतान है, वो झूठ का पिता है। लेकिन हमारा मनोभावना, हमारा मनोविचार इस वचन के आधार पर होना चाहिए। वचन क्या सिखाता है कि हम कौन है, परमेश्वर के नजर में हम कौन है? हम याजकों का एक राज्य है। ओके, तो हम सब याजक है। इसलिए पतरस ने भी पतरस के पुस्तक में कहा है, क्या कहा है? हम याजकों का एक समाज है। ओके, तो ये नए नियम विश्वासियों के लिए केवल नहीं था, परमेश्वर का ये योजना ये शुरुआत से ही था। ये पतरस का एक नया आइडिया नहीं था जो पतरस ने उनके पत्रिका में लिखा। ये पुराने करार में से ही परमेश्वर से उत्पन्न हुआ एक 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 मनोभावना था, परमेश्वर का एक डॉक्ट्रिन था, परमेश्वर का एक दृष्टिकोण था। क्या दृष्टिकोण था? कि हम सब याजक है। ओके, तो हम सब याजक है, उसका मतलब ये नहीं कि कल जाके हम पास्टर जेकब को बोलोगे, पास्टर जेकब आप हट जाओ, हम चर्च चलाएंगे। एक याजक बनना एक पदवी नहीं है, एक पद नहीं है, एक कुर्सी नहीं है, वो एक सेवकाई है। हमें वो कुर्सी नहीं चाहिए याजक का कार्य करने के लिए। वी डोंट वांट दैट पोस्ट ऑफ अ पास्टर टू डू द रोल ऑफ अ पास्टर। आप समझ रहे हो? हमें वो पास्टर का कुर्सी नहीं है तो भी एक साधारण विश्वासी होकर भी पास्टर का काम कर सकते हैं। कैसे? उनके साथ सहभागी होकर, पास्टर के साथ, बाकी अगुवाइयों के साथ मिलकर सेवकाई करना। जैसा मैंने कुछ हफ्ते पहले कहा, पास्टर क्या करते? बाकी विश्वासियों को, कलीसिया में जो आते, उनका खबर फोन करके पूछते कैसे है। यदि कोई प्रॉब्लम में है, कोई बीमार है, उनके लिए पास्टर घुटने टेककर प्रार्थना करते हैं घर पे। ओके, तो वो काम हम भी कर सकते हैं। एक दूसरे को, विश्वासियों को फोन लगाकर पूछ सकते हैं। ओके, कैसे? कोई बीमार है, तकलीफ में है, उनके लिए हम भी अपने अपने घरों में घुटने टेककर प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा क्या करते हैं पास्टर? जाकर मिलते हैं, विजिट करते हैं। ओके, हम भी कर सकते हैं। हमारे विश्वासी भाई बहनों को हम जाकर मिलना। ओके, ये हम यदि अपने अपने कामों में व्यस्त रहेंगे, ये सोचकर कि कलीसिया का काम केवल कुछ लोग करेंगे, तो ये हमारा गलतफहमी है। परमेश्वर का बुलावट और योजना को हम पूरा नहीं कर रहे। हम सबका बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है। ओके, जब यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं मुझे चुना है। क्या लिखा है वहां पर? पढ़िए ब्रदर, यूहन्ना 14 अध्याय, जॉन चैप्टर 14। सॉरी, जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना 15 अध्याय, उसका मुझे नहीं 16 वाक्य। परंतु तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यस, तो परमेश्वर ने हमें चुना है। और क्यों चुना है? ताकि हम जाकर फल लाए। ओके, तो परमेश्वर के लिए हमें फल लाना है। आत्मा का फल, आत्माओं को जीतना, ये सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, एक गिफ्ट है जो आप प्रभु को दे सकते हैं। परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो दिया है और जो किया है, सबसे बड़ा गिफ्ट परमेश्वर ने हमें उनका एकलौता पुत्र यीशु मसीह को देकर किया। उत्तर में हम उनको क्या देंगे? आत्माओं को जीतकर उनको हम देंगे। ओके, और आत्माओं को जीतकर उनको प्रभु के बारे में सिखाना, उनके लिए प्रार्थना करना, प्रभु के राज्य में सेवकाई करना, अलग अलग तरीके से। जो भी आपका बुलावट है, कार्य में लग जाओ,
कार्य में लग जाओ, गेट ऑन विद द वर्क. Whatever is God's calling in your life, if you have identified, get on with that work. Okay? वो है एक याजक का काम. आप सब उस अर्थ से याजक है, एक पद के रूप में नहीं, लेकिन एक सेवकाई के रूप में. Okay? It is not a position, but it is a service. It is a service that we need to look at it. So, परमेश्वर कौन से नजर से हमें देखता है? याजकों का राज्य और एक पवित्र देश. ओके? तो दूसरा, हमें पवित्रता में जीना है. परमेश्वर हमें उस नजर से देखता है कि पवित्रता में जियो. These are the words which you shall speak to the children of Israel. इन शब्दों को इजराइल प्रजा से तुम बात करो, ऐसा परमेश्वर ने मूसा से कहा. ओके? 8वां वाक्य पढ़िए, निर्गमन का 19 अध्याय, उसका 8वां वाक्य. और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे. जो कुछ भी परमेश्वर यहोवा ने कहा है हम वैसा ही करेंगे, ऐसा इजराइल प्रजा ने उत्तर दिया. ओके? क्या हम सब ये उत्तर दे सकते हैं आज? और एक बार अपने आप को और एक बार समर्पण करते हुए, क्या हम इस वचन के सामने, क्योंकि ये हमारे लिए भी है. ओके? हम चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है. और क्यों चुना है? उनके लिए फल लाने के लिए. क्यों चुना है? हमें एक याजकों का समाज बनाया है. ओके? तो क्या हम उत्तर में परमेश्वर को ये कह सकते हैं जो इजरायलियों ने कहा? हाँ, हम जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा हम करेंगे. ओके? मैं विश्वास करता हूं हम सब ये उत्तर कह रहे हैं. ओके? और फिर पर मूसा ने क्या किया? पढ़िए. तब यहोवा ने मूसा से कहा, नहीं, 8वां वाक्य का अंत क्या कहता है? लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई. लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई. ओके? आज मुझे ये जरूरत नहीं है कि जो वाणी मैं आपको सुना रहा हूं आप उसका उत्तर मुझे बोलो और मैं परमेश्वर को बोलूं. नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है. लेकिन आप स्वयं जो भी वचन से आज वाणी को आप सुन रहे हैं, आप स्वयं परमेश्वर को उत्तर दे सकते हैं. यस लॉर्ड, आमीन बोलकर हम आपके वचन के अनुसार हम करेंगे, हम सुनेंगे. ओके? पढ़िए 9वां वाक्य. तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूं, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें. और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया. तो यदि आप लोग आज परमेश्वर के इन वचन को सुनकर यदि आप आमीन बोलते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि हम भी परमेश्वर के इन वचनों का आज्ञा पालन करेंगे. ओके? क्योंकि देखो, ये परमेश्वर की हृदय की बात है. परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाया, जाकर दूध और मधु पीने के लिए, खाने के लिए, मजा उठाने के लिए नहीं, कनान देश में. लेकिन सबसे मुख्य बात क्या है? परमेश्वर का इजरायली लोगों का उद्धार करने का मिस्र देश से मुख्य उद्देश्य क्या है? आज्ञा पालन करना. आज्ञा पालन करना. परमेश्वर कुछ वचनों को सुनाना चाहता है, वो वचनों को जैसा है वैसा ही आज्ञा पालन करना. As it is, you need to obey God's word. That is God's purpose of yours and mine salvation. हमने 20 साल, 10 साल, 30 साल, जब भी जितने भी साल पहले हमारा उद्धार हुआ और हमने बपतिस्मा लिया, आज हम कैसे हैं? उनका आज्ञाओं का पालन करके जीते हैं कि नहीं? एक याजक बनकर सेवकाई कर रहे कि नहीं? एक पवित्र देश बनकर, एक पवित्र जन बनकर क्या हम पवित्रता में जी रहे कि नहीं? ये प्रश्न का उत्तर हमें अपने आप को देना है. ओके? यदि नहीं जी रहे जैसा परमेश्वर का उद्देश्य है उसके अनुसार यदि हम नहीं जी रहे, ओके, तो हमें आज निर्णय लेना है और परमेश्वर से हाँ कहना है.
हमारे हाथों को, हमारे लिफ्टिंग अप आवर राइट हैंड एंड टेलिंग यस लॉर्ड, और एक बार समर्पण करना है। और यदि हम ऐसा समर्पण करेंगे तो परमेश्वर हमारे सामने प्रकट होगा, जो हमने अभी 9वां वाक्य में पढ़ा। ओके, गॉड इज सेइंग टू मोसेस, बिहोल्ड आई कम टू यू इन द थिक क्लाउड दैट द पीपल मे हियर व्हेन आई स्पीक विथ यू एंड बिलीव यू फॉरएवर। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने, अपने लोगों के सामने प्रकट करने में बहुत दिलचस्पी रखता है। God is very excited to show himself to his people and we are his people. Okay, यदि हम आंख बंद करके ऐसे ध्यान से मुझे देखिए, मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं, ओके, एनैक्ट करके दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए मुझे। यदि हम हमारे आंख बंद करके अंधेरे में कुछ ऐसे ऐसे हाथ फैलाते, कुछ ना कुछ हमें शायद मिल सकता है। हाँ, हमें मिल गया, ओके, लेकिन परमेश्वर को हम ऐसा नहीं खोज सकते, अंधेरे में नहीं खोजना है हमें। मिल गया तो मिल गया, ओके, ऐसे नहीं। पवित्र जन बनकर, पवित्रता में जीकर, ओके, जब हम पवित्रता में जिएंगे, परमेश्वर का आज्ञा पालन करके जिएंगे, हमारे आंखें खुल जाएंगे, रोशनी आ जाएगा। तभी हमें परमेश्वर को अंधेरे में ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने आप आंखों में रोशनी आएगा। जब आंखों में रोशनी आएगा, परमेश्वर प्रकट होगा, एंड गॉड इज वेटिंग फॉर दैट। गॉड इज प्लीज्ड टू शो हिमसेल्फ टू अस, टू रिवील हिमसेल्फ टू अस। गॉड इज प्लीज्ड to open our ears so that we can hear aloud what he is speaking through the word of God. जब आप सुबह को आप वचन पढ़ते हो, कई बार क्यों हमें वचन से कुछ संदेश नहीं मिलता? कई बार हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन मैंने कुछ हफ्ते पहले कहा, कुछ लोगों को वचन पढ़ते पढ़ते नींद आता है। क्यों ऐसे होता है? ओके, हमारा जीवन पवित्र नहीं है, हमारा जीवन परमेश्वर के बुलावट के अनुसार, उनका उद्देश्य के अनुसार आज्ञा पालन का जीवन नहीं है। ओके, जब हम उस प्रकार से जिएंगे, तब जैसा हम वचन पढ़ेंगे, हमें उस वचन के अंदर से एक व्यक्ति उभर आ रहा है सामर्थ तरीके से। वो व्यक्ति कौन है? परमेश्वर स्वयं वचन के द्वारा प्रकट होगा, दर्शन के द्वारा प्रकट होगा। आपको परमेश्वर का दर्शन होगा। ओके, ये केवल कोई गिने चुने परमेश्वर के सेवक बोलने वाले ऐसे गिने चुने लोगों के लिए नहीं है, पूरे इजरायली मंडली के लिए है परमेश्वर का अनुभव होना। टू हैव एन एनकाउंटर विद गॉड, टू सी गॉड, टू नो गॉड, टू हियर गॉड एवरी डे। ओके, it's a privilege for every believer. It is not just for pastors and some people. Okay, so it is for each one of us. और उसके लिए हमें कुछ तैयारी करना पड़ेगा। 10वां वाक्य पढ़िए, क्या है वो तैयारी? तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो ले। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा इजरायलियों को ये कहने के लिए, क्या करने के लिए? आज और कल के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो ले। देखो, पवित्र करना मतलब आप उसका मतलब ये नहीं कि मूसा ने हाथ में साबुन लिया और इजरायलियों को एक एक करके बुलाया, चलो धोकर पवित्र किया। नो, the English word is very very apt. इंग्लिश में लिखा है, go to the people and consecrate them today and tomorrow. Consecrate का मतलब क्या है? लोगों को अलग करना, परमेश्वर के लिए अलग होना। तो जहां कहीं भी वचन में आप पवित्र शब्द पढ़ते हो, हिंदी में क्या लिखा है? आज और कल क्या करना? पवित्र करना, पवित्र करना। तो जहां कहीं भी आप पवित्र ये शब्द सुनते हो वचन में, पवित्र करना मतलब अलग करना। ओके, तो जब परमेश्वर 6वां वाक्य में मूसा से कहा या इजरायली लोगों से कहा तुम एक पवित्र जाति हो, उसका मतलब परमेश्वर इजरायलियों से कहता है कि तुम
अलग किए हुए लोग हैं, अलग किया हुआ एक जाति है। पूरे संसार में से तुमको मैंने एक नीच धन जैसा देखा है, ओके, और अलग किया हुआ एक देश, ओके। उसी प्रकार हमसे भी परमेश्वर कहता है अपने आप को अलग करो, उस फोन से, मोबाइल से अलग करो, उस व्हाट्सएप से अलग करो, अपने दोस्तों से अलग करो, अपने काम करने के क्षेत्र में पूरा दिन समय मत बिताओ, काम से निकलो और जल्द घर आओ और अपने आप को अलग करो, मेरे साथ समय बिताओ, अपने आप को, ओके, टीवी से अलग करो, ओके। बाकी सब आपके कार्यों से, बाकी सब कार्य मत करो नहीं कहा परमेश्वर ने। काम अपने जगह पर, पढ़ाई अपने जगह पर। मैं जवानों से भी कहता हूं, जो पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज का पढ़ाई कर रहा है, बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करो, उत्तम करो, लेकिन दिन का एक समय है, वो समय परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करो, सेट अपार्ट, हैव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, अपने आप को अलग करो। ये परमेश्वर का उद्देश्य है, आपका उद्धार करने का उद्देश्य स्वर्ग नहीं है उद्देश्य, ओके। हम सब एक गलत फहमी में है, हमारा उद्धार हुआ है किसके लिए हुआ है? हमें स्वर्ग लेके जाने के लिए। नो, स्वर्ग लेके जाना परमेश्वर का प्रथम उद्देश्य नहीं है, दैट इज वन ऑफ द थिंग, ओके। इजरायलियों को परमेश्वर का उद्देश्य कनान देश में कैसे भी पहुंचा दो वो नहीं है, लेकिन पवित्र जीवन जीना चाहिए इजरायली लोग। कनान देश में पहुंचो या ना पहुंचो, पवित्रता में, ओके। परमेश्वर का बुलावट और योजना वो है, एक याजक बनकर जीना चाहिए, वचन का आज्ञा पालन करके जीना चाहिए, ओके। अपने बुलावट को समझो, कौन हम में से कौन ऐसा सोचकर उस दिन, जिस दिन भी आपने बपतिस्मा लिया, पानी में उतरा, ओके, क्या हम ऐसे सोचे थे? अगर सोचा तो अच्छी बात है, लेकिन क्या हमने ऐसा सोचा था कि मेरा आज उद्धार हुआ है, अब मैं स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग का टिकट बुक? अक्सर विश्वासी लोग ऐसे सोचते, ऐसा नहीं। लेकिन क्या हम ऐसे सोचे कि मेरा उद्धार हुआ है, आज मैंने बपतिस्मा लिया है, क्यों? जाकर प्रभु का सेवकाई करने के लिए। मैं एक याजक हूं, मैं भी एक पास्टर के जैसा हूं। केवल पास्टर पूरा काम नहीं करेगा, मैं भी काम करूंगा, सेवकाई करूंगा प्रभु के राज्य में, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। यदि आपने ऐसा सोचकर बपतिस्मा लिया था, तो आज ये समय है कि हम जांच कर देखें कि हम क्या वही पवित्रता में जी रहे, क्या हम वही बुलावट के अनुसार जी रहे, क्या कहीं ना कहीं यात्रा में हमारा लक्ष्य हमने खो दिया है। यदि खो दिया है तो लौट आना ये समय है, ओके। परमेश्वर कह रहा है मूसा के द्वारा लोगों को, मूसा को कहता है कि लोगों को आज और कल मैं समय दे रहा हूं, आज और कल अपने आप को अलग करने के लिए, पवित्र करने के लिए, कॉन्सिक्रेट, ओके, और अपने वस्त्रों को धोने के लिए, अपने वस्त्रों को धोने के लिए। कौन सा वस्त्र? ओके, ये मत सोचो इजरायली लोग सब अपने अपने वस्त्र निकालकर वॉशिंग मशीन में डाल दिया, धो लिया, हाँ रेडी हो गया। नो, ओके। कौन सा वस्त्र? यशायाह का पुस्तक निकालो, आइज़ाया, उसका 61 अध्याय, 61, आइज़ाया चैप्टर 61, उसका 10वां वाक्य पढ़िए। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। जैसा दूल्हा और दुल्हन अपने आप को सजाता है, उस प्रकार परमेश्वर ने हमें सजाया है। कैसे सजाया है? कौन से वस्त्र से सजाया है?
उद्धार का वस्त्र से, इन वचनों के अनुसार, he has clothed me with the garment of salvation and he has covered me with the robe of righteousness. हमें धार्मिकता का वस्त्र से हमें क्या किया है? हमारे आत्मिक शरीर को परमेश्वर ने वस्त्र पहनाया है। हमारा आत्मिक शरीर नंगा हो गया था, ओके, नाश के लिए तैयार था। इसीलिए आदम और हव्वा जब आज्ञा उल्लंघन किया, पाप किया, तब वचन कहता है कि वे अपने आप को नंगा महसूस किया, अपने आप को ऐसा पाया। ओके, क्यों हम भले अच्छे भार के रूप में हमारे शरीर के ऊपर अच्छे वस्त्र, शायद महंगे वस्त्र पहनते होंगे, लेकिन परमेश्वर जो आत्मा है वो हमारे आत्मा को देखता है। हमारा आत्मा के ऊपर जो वस्त्र पहना है ना, वो वस्त्र क्या वस्त्रहीन हो गया है? जब हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के आज्ञा पालन करके नहीं जीते, ओके, पवित्र जीवन नहीं जीते, तब ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारे आत्मिक जो व्यक्ति है ना अंदर, वो वस्त्रहीन हो गया है, क्योंकि उस धार्मिकता का वस्त्र पर दाग लग गया है हमारे अपवित्र जीवन के कारण। इसलिए हर दिन जांचना बहुत जरूरी है अपने आप को। कहीं पर भी पाप है तो पश्चाताप करना जरूरी है, ताकि वो दाग परमेश्वर शुद्ध करे अपने आप को अलग करना, हर दिन अलग करना बहुत जरूरी है। साल में एक बार हम यदि, या हफ्ते में भी एक बार, जब आप रविवार को कलीसिया में आते हैं, जब प्रभु भोज आपके सामने आता है, तभी अपने आप को जांचना, नो, ये सही तरीका नहीं है। हफ्ते में एक बार रविवार को अपने आप को मत जांचो। जो व्यक्ति सोमवार से शनिवार तक रोज अपने आप को जांचता है और उस क्रूस की कथा को याद दिलाता है अपने आप को, वो व्यक्ति रविवार को आके प्रभु भोज से भाग लेता है, उसमें अर्थ है। नहीं तो कोई अर्थ नहीं है। केवल हफ्ते में एक बार अपने आप को जांचेंगे तो कोई अर्थ नहीं है। ओके, तो रोज अपने आप को जांचना है, रोज अपने आप को जांच कर अपने आप को अलग रखना है। जब आप ऑफिस जाते हो, ये मन से जाओ कि मैं एक अलग किया हुआ एक व्यक्ति है, मैं सब लोगों की तरह उनके स्वभाव के अनुसार मैं नहीं जी सकता। ओके, लेट अस ऑल अंडरस्टैंड दैट। तो परमेश्वर का ये आज्ञा था इजरायली प्रजा को। क्या आज्ञा था? मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कहा, आज और कल इजराइल प्रजा को अलग करे और वस्त्र को धो ले, और फिर तीसरा दिन क्या करना है? पढ़िए 11 वाक्य, निर्गमन का 9। और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाए। तीसरे दिन तक तैयार हो जाए। सुनो ध्यान से सब लोग, तीसरा दिन तक तैयार हो जाए। क्यों? तीसरा दिन सबसे महत्व दिन है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो अपने आप को लोगों को प्रकट करे। ओके, रविवार का दिन जब हम कलीसिया में आते हैं, ओके, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है, लेकिन हम कैसे आते हैं रविवार को? क्या हम कैसे भी सुबह नींद से उठ के जल्दी जल्दी तैयार होके दौड़कर कैसे भी पहुंच जाते 10 बजे या 10:30 बजे? आराधना के बीच में कोई घुस जाते हैं और कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं, कोई एहसास नहीं है किसी को। ओके, पास्टर जेकब ने कई बार कहा है, फिर भी लोगों को कोई शर्म नहीं है उस प्रकार से प्रवेश करना। ओके, लेकिन तैयारी शुक्रवार से ही होना चाहिए। ओके, क्यों मैं ये कहता हूं? क्योंकि इजराइल देश, यहूदी लोग सबत का तैयारी, उनके लिए सबत शनिवार था। ओके, लेकिन शनिवार का जो सबत का तैयारी उन लोग
शुक्रवार को ही शुरू करते थे। ओके, तो परमेश्वर चाहता है कि हम जब रविवार को कलीसिया में जाते हैं, उसका तैयारी एक दिन पहले से ही तैयारी शुरू करो। आप पूछेंगे मुझे क्या तैयारी करना है? ओके, सब तैयारी पास्टर को करना है, रवि को करना है, उधर का कुर्सी तैयार करना है, आराधना का मंडली जाके शनिवार को जाके प्रैक्टिस करना है, उन लोग करना है। हम जाके सिर्फ सुनेंगे। हमें प्रार्थना में तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है। ओके, वहां पर रविवार को जब हम चर्च में बैठते हैं, जब रोटी और दाखरस आया तभी नहीं हमारा तैयारी होना चाहिए। हमारा तैयारी एक दिन पहले ही। प्रार्थना करो पास्टर के लिए जो वचन बांटने वाला है, प्रार्थना करो आराधना का मंडली के लिए, प्रार्थना करो उस प्रभु भोज को जो हम लेने वाले हैं, प्रार्थना करो हर लोगों के लिए, हमारे पूरे कलीसिया को विस्तार में समय निकालकर पूरा शनिवार आप प्रार्थना करो। उस तैयारी से अपने आप को भी तैयार करो। जब आप आएंगे तब आपको आराधना में सामर्थ्य महसूस होगा, उस वचन में सामर्थ्य महसूस होगा। पास्टर जेकब ने कितने बार कहा है, आराधना चालू है तभी कुछ कुछ लोग इधर उधर सोते रहते, कोई भी नहीं सोएगा। यदि इस तैयारी में आएंगे तो पाने के लिए आएंगे, पाने के लिए आएंगे। ओके, तो ये एक उदाहरण है। रविवार का जो आराधना मैंने एक उदाहरण कहा, इस उदाहरण के पीछे दूसरा भी बहुत कुछ उदाहरण है। आज शनिवार का जो बाइबल स्टडी है उसके लिए भी तैयारी करना है आपको। ट्यूसडे का जो बाइबल स्टडी है तैयारी करना है। ओके, ये सब छोड़ो। आपका व्यक्तिगत प्रार्थना जो सुबह को आप करते हैं या बाइबल रीडिंग जो आप करते हो रोज सुबह को, उसके लिए भी आपको तैयारी करना है। एक रात पहले, उस रात पहले आप यदि देर रात तक आप बैठेंगे, ओके, आप देर लेट सोएंगे तो आप सुबह उठ नहीं पाएंगे। प्रभु के मुंह को खोजने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए आप नहीं उठ पाएंगे। ओके, और फिर आप सोचते हो, विचार करते हो कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूं मुझे नींद क्यों आता है। ओके, ये मैं आपको व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो भी मैं कह रहा हूं, यदि उसमें आपको लगता है कि आप है उस चीज में, तो आपके लिए ये फलदायक होने दो। ओके, लेकिन आप यदि सब कुछ सही करता है तो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं, इजरायलियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हमें एक इजरायलियों का कहानी समझकर नहीं पढ़ना है, लेकिन ये हमारे लिए है। अपने आप को पवित्र करो। 2 दिन पवित्र करना है, अलग करना है अपने आप को, क्योंकि तीसरा दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। रात को अपने आप को अलग करो, क्योंकि सुबह का समय बहुत पवित्र समय है। परमेश्वर के साथ आप प्रार्थना में और वचन में समय निकालने वाले हर दिन सुबह। बाइबल स्टडी, परमेश्वर बात करने वाला है, तैयारी से आ जाओ। रविवार का आराधना, परमेश्वर कुछ योजना से परमेश्वर आपके पास आने वाला है, आप तैयारी से आ जाओ। ये सब हमारे लिए एक उदाहरण है। ओके, लेट अस मेडिटेट ऑन दीज वर्ड्स। ओके, कि परमेश्वर का हमारे जीवन में उद्धार लाने का मकसद क्या है। क्या सीखा हमने आज? परमेश्वर का इजरायलियों के जीवन में मिस्र देश से छुड़ाने का मकसद क्या था? कि वे वचन का आज्ञा पालन करें। दूसरा, एक याजक का राज्य बनकर जिए। तीसरा, एक पवित्र देश बनकर जिए। ओके, हमारे जीवन में भी हमारा उद्धार परमेश्वर ने क्यों किया है? हमने बपतिस्मा क्यों लिया? परमेश्वर के इस मंडली के साथ क्यों जुड़ गए? क्योंकि वचन पढ़े और आज्ञा पालन करे। दूसरा, एक याजक बनकर जिए, प्रभु के सेवकाई में लग जाए। तीसरा, पवित्रता में जिए। और उस प्रकार से यदि हम अपने आप को जी रहे तो परमेश्वर प्रकट होना चाहता है हमारे सामने।
हमें दर्शन के द्वारा, वचनों के द्वारा गॉड वांट्स टू स्पीक टू अस। ओके, अगले हफ्ते, अगले शनिवार हम देखेंगे परमेश्वर इजरायलियों के सामने प्रकट होकर क्या क्या किया, क्या कहा। लेट अस प्रे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वचन के सामने हम सब अपने आप को समर्पण करते हुए, जैसा इजरायलियों ने मूसा को उत्तर में कहा, हाँ हम सब तैयार हैं, ऐसा आज और एक बार हम पुनर्समर्पण करते हैं अपने आप को और कहते हैं कि हम तैयार हैं। जैसा यहोशू ने इजरायलियों से कहा, तब इजरायली लोगों ने उत्तर में कहा कि हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, हम तैयार हैं। पिता परमेश्वर, आज और एक बार हम आपसे कहते हैं, यस लॉर्ड, हम अपने आप को जांचते, हर एक उन क्षेत्रों में जहां पर हम सही नहीं है, वहां पर हम अपने आप को सही करना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि आपने सहायक के रूप में पवित्र आत्मा हमें दिया है, सबसे सामर्थी पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम अपने आप को आपके मार्ग में सही करेंगे। यस लॉर्ड, हम यीशु मसीह के समान बनेंगे। आपके पुत्र यीशु के आने के लिए हम सबको तैयार कर प्रभु। यस लॉर्ड, यदि आज रात आप आएंगे, हमें याद कर प्रभु। यस लॉर्ड, यदि आपके पुत्र यीशु के आने का देरी हुआ तो कल सुबह और एक बार मिलकर हम सब संगति का लाभ उठा पाए, आराधना एक मन होके हम करें। यस लॉर्ड, प्रार्थना करते हैं पास्टर जेकब के लिए जो कल वचन बांटेंगे, उनके द्वारा सामर्थ्य से आप हमारे बीच में कार्य कर प्रभु। यस लॉर्ड, आराधना के मंडली के द्वारा आप सामर्थ्य तरीके से हम सबसे बातें कर प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। Amen. God bless you all. Praise God. Praise God. Praise God. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord. Bye. God bless you all. God bless you. Lord bless you too. Thank you, Lord.